नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मिर्जापुर में नारी पैड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच का उद्घाटन समारोह किया गया आयोजित। यादगीर में पत्रकारों के यूडब्ल्यूजे की ओर से पत्रकारों के 10वीं पास बच्चों के लिए एसएसएलसी प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम किया गया आयोजित। लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही यह बात। अंजलि अंबिगार के मामले में एम राजीव को निलंबित करने के बाद कुशल चौका से बने हुगली धारवाड़ शहर के नए डीसी। कार्टून के बाद दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, निकालनी पड़ेगी कांग्रेस छोड़ो यात्रा। हरियाणा की हिसार में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन, इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी पकड़े गए, सामने आया श्रीलंका का कनेक्शन। अब समाचार विस्तार से। महिलाएं और लड़कियां पैड्स का उपयोग करती हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। बीदर के मिर्जापुर में आज सोमवार 20 मई को नारी पैड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों और महिलाओं के अलावा वरिष्ठ व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और इस संबंध में महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया गया। नारी पैड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर दीपक पाली ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर धनराज शंकर की पूर्व काउंसलर गुलराज दिगंबर बेन्ने, राकेश मरतुरकर, मनोज भीमराव पाटिल और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुराज का कवरेज। ಊರಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಿಡಿದ್ರು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಹಿರಿಯರಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲೇಜ್ JND ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಊರವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಊರವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು JND ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ದೀಪಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಮರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಮರ್ಜಾಪುರಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿವಿ। ಸೊ ನಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಏನು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ। ಸೊ ಅವು ಏನಂತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ಅವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಗೂ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಏನಂತಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ದು 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ। ಸೊ ನಾವೇನಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಬೋ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಪಲ್ಪ್ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವೇಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೀದರಲ್ಲಿ। ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಸೊ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈತೆ। ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮರ್ಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅವರು। ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಪಲ್ಪ್ ಅಂತ ವೇಸ್ಟಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ। ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಎಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಂತೂ ಮಾಡಿರೋದು। ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। यादगीर में पत्रकारों की संगठन कर्नाटक यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यादगीर डिस्ट्रिक्ट KUWJ की ओर से पत्रकारों के 10वीं पास बच्चों के लिए एसएसएलसी प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट पत्रिका भवन वरकनहल्ली रोड कंच सर्कल यादगीर में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस यूनियन के अध्यक्ष मल्लप्पा संकीर ने की। इस वर्ष एसएसएलसी की परीक्षा पास करने वाले यादगीर जिले के पत्रकारों के कुल 9 बच्चे, जिनमें सैयद साजिद हयात के बेटे सैयद नोमान फराज और कलीम फरीदी के बेटे हतीम फरीदी और अन्य शामिल हैं। इन सभी को 5,000 रुपए नकद के अलावा मोमेंटो और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में यादगीर विधायक चन्ना रेड्डी पाटिल तुन्नूर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके अलावा अन्य गणमान्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यादगीर के पत्रकार साजिद हयात ने केपी न्यूज के
न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। ಸಂಕಿನವರೇ, ಠಾಕೂರ್ ಅವರೇ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರೇ, ರಾಜು ಅವರೇ, ಜೋಶಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಈಗಾಗಲೇ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, SLC ಹುಡುಗರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರಿಗೆ, ಮೆರಿಟ್ ಬಂದವರಿಗೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಮಂದಿ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡಸ್ತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಷ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಾಯಾಗಾದ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಟೋಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಫೇಲ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಭಾಳ ಜನ ಮೆರಿಟು 100% ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದವರಿಗೆ. जिला पुलिस अधीक्षक चंद बसवन्ना लंगोटी ने रविवार को शहर चिटगुप्पा के पुलिस स्टेशन का दौरा किया और इसका निरीक्षण किया। शहर के पुलिस स्टेशन में बच्चों के कमरे का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने थाना परिसर में बाइक, अन्य वाहनों व अन्य मामलों की जांच की तथा विभिन्न मामलों की जानकारी ली। साथ ही पुलिसकर्मियों ने समस्या कमी के बारे में भी पूछताछ की। जिले में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया गया है और तालुके में भी अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। बीदर जिला पुलिस अधीक्षक चंद बसवन्ना लंगोटी ने कस्बे के पुलिस थाने का निरीक्षण किया और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कस्बे में यातायात समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए जनता के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कस्बे की सभी दुकानों व घरों में सीसी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला भर में सीसी कैमरा अपनाने के लिए जिला भर में सीसी कैमरे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यदि सीसी कैमरा लगाया जाता है तो यह व्यवसायियों और जनता के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अपराध का पता लगने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर DYSP GS न्यामेगौड़ा, CPI श्रीनिवास अल्लापुर, PSI बाशुमिया कुंजूर, ASI भीमराव राठौड़, आकाश रेड्डी, शेख शफीउद्दीन और अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಓಡಾಡೋವರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆಡ್ ಡೇ ಇವನ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು CMC ಅವರು ಏನಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಕ್ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳಿಗೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट में फेरबदल की योजना नहीं है। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि कांग्रेस को राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 15 से 20 सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा लागू 5 गारंटी को बंद करने से भी इनकार किया। सिद्धरामैया ने प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु द्वारा आयोजित मीट द प्रेस के दौरान कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हम कैबिनेट में किसी फेरबदल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, बिना किसी कारण के हम कोई भी गारंटी योजना बंद कर देंगे। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कुशल चौकासे को हुबली धारवाड़ शहर का नया DCP कानून व्यवस्था नियुक्त किया। चौकासे राजीव की जगह लेंगे, जिन्हें अंजलि अंबिगार हत्या मामले में निलंबित कर दिया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 20 मई को एक जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आपसे कहकर जाता हूं कि 4 जून के बाद दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस चुनाव में 2 खेमे हैं, जहां एक खेमे में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, वहीं दूसरे खेमे में 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहकर भी जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर दिवाली के दिन जवानों के साथ मिठाई खाने वाले पीएम हैं, तो दूसरी तरफ गर्मी में बैंकॉक और थाईलैंड जाने वाले राहुल बाबा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत छोड़ो यात्रा से की थी। मैं आपसे कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सिरसा से सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। अमित शाह ने कहा कि खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बजट बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साल 2036 में ओलंपिक हमारे देश में करवाएंगे, कांग्रेस ने इसे बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कटक और ढेंकनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों का उत्साह दिख रहा है कि 30 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। ओडिशा के अंगुल रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने जा रही है और हम यहां के धरती पुत्र या धरती पुत्री को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाकी चरणों और ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान में पीएम मोदी 2 दिनों के लिए ओडिशा के दौरे पर हैं। तीर्थ नगरी पुरी में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने ढेंकनाल और कटक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भी तय है कि आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार शपथ लेगी, साथ ही ओडिशा भी बड़ा बदलाव देखेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज रायबरेली का दौरा किया, जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही उन्होंने पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से वह मौजूदा सांसद है। 5वें चरण के मतदान वाला क्षेत्रों में रायबरेली भी शामिल है। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया और वोट डाल चुके लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी 5 बार सांसद रह चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें दौर में 14 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी है। इनमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गेंडा शामिल है। वहां केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी पकड़े गए। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक इन आतंकियों की पहचान उजागर नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि ये 4 आतंकी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हैं और इनका श्रीलंका कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इन 4 आतंकियों के अहमदाबाद आने का इनपुट मिला था। केंद्रीय एजेंसी ने गुजरात एटीएस के साथ इस इनपुट को शेयर किया था कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े ये आतंकी एयरपोर्ट पर आए हैं। ये सभी आतंकी श्रीलंका के बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिलहाल गुजरात एटीएस 4 आतंकियों को अज्ञात स्थान पर ले गई है और पूछताछ शुरू कर दी है। आतंकी किस इरादे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आए थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों ने यह भी कहा कि इनके पास से जो टिकट मिले हैं उसके आधार पर ये चेन्नई से आए हैं। इस्लामिक स्टेट के ये आतंकी कोलंबो से तमिलनाडु और तमिलनाडु से अहमदाबाद आए हैं। इन 4 आतंकियों को हैंडल एक गाइड कर रहा था। दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल को मारने और हमला करने की लिखी गई धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी बेहद गुस्से में है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। आप नेता अतिशी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मारने और हमला करने की धमकियां लिखी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस शांत बैठी है। आप नेता अतिशी ने कहा कि यही दिल्ली पुलिस स्वाति मलिवाल वाले केस में 24 घंटे स्पेशल टीम लगाकर जांच कर रही थी, लेकिन जब दिल्ली के सीएम को मारने की धमकी जाती है तो दिल्ली पुलिस गायब है। दिल्ली पुलिस शांत है क्योंकि यह धमकियां सिर्फ अंकित गोयल द्वारा नहीं दी गई, बल्कि भाजपा द्वारा रची गई साजिश है। 1 फुट 6 इंच लंबी महिला विनीता सेठ ने लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ओडिशा से मतदान किया, साथ ही लोगों से वोटिंग की अपील की। साथ ही विनीता सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अपना वोट डाला और मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मिर्जापुर में नारी पैड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच का उद्घाटन समारोह किया गया है। यादगीर में पत्रकारों के यूडब्ल्यूजे की ओर से पत्रकारों के 10वीं पास बच्चों के लिए एसएसएलसी प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम किया गया आयोजित। लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में कोई फेरबदल नहीं होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही यह बात। अंजलि अंबिगार के मामले में एम राजीव को निलंबित करने के बाद कुशल चौका से बने हुगली धारवाड़ शहर के नए डीसी। राजून के बाद दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, निकालनी पड़ेगी कांग्रेस छोड़ो यात्रा। हरियाणा की हिसार में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा एक्शन, इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकी पकड़े गए, सामने आया श्रीलंका का कनेक्शन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।